Good morning, friends, students. In this chapter, alcohol, phenol, and ether. Now we will start phenol. Okay, C6H5OH. That is the formula of phenol. This one. Okay, on benzene ring, OH group is present. That one is known as phenol. C6H5OH. Now, what are the preparation methods of phenol? First preparation method of phenol is from benzene diazonium salt. This benzene diazonium salt is in the Sandmeyer's reaction. Okay, C6H5N2 plus Cl minus. When benzene diazonium chloride salt reacts with water, it gives phenol. Okay, directly reacts with water, it gives phenol. That is the first preparation method of phenol. Second preparation method from chlorobenzene, halobenzene. That is a chlorobenzene. When chlorobenzene reacts with NaOH in the presence of 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure, it gives again phenol. So by chlorobenzene we can also form phenol. Third reaction by salicylic acid. That is a salicylic acid. If OH and COOH both groups are present on benzene ring at ortho position, that is known as salicylic acid. When salicylic acid reacts with soda lime, that one is a soda lime. NaOH and CaO, mixture of NaOH and CaO is known as soda lime. Okay, when salicylic acid is reacts with soda lime, it gives sodium phenoxide. यहाँ पर आपको इसका नेम लिखना है. You have to mention its name, sodium phenoxide. When sodium phenoxide reacts with HCl, it gives phenol. So we can form phenol by salicylic acid. Clear? Soda lime की presence में. From cumene, that is another compound, cumene, CH3CH3, that is the cumene. Cumene is a common name of this compound. You have to write here its IUPAC name, 2-phenyl propane. Here the name of benzene is phenyl because that one is a substitute. So 2-phenyl propane. Okay, that one is the IUPAC name of this compound. Cumene is a common name. When cumene reacts with oxygen, it gives cumene hydroperoxide. That's named cumene hydroperoxide. Okay, CH3, that one is CH3. This CH3, this CH3. In the between of CH bond, 2 oxygen atoms are present of O2. Clear? C और H के बीच में, ये जो C और H है, इस C और H के बीच में दोनों ऑक्सीजन के एटम बीच में फंस जाएंगे या बीच में अटैच हो जाएंगे. दैट वन इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. ओके, इसको हम कहेंगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का किया जाता है हाइड्रोलाइसिस H प्लस की प्रेजेंस में, देन इट गिव्स फिनॉल. So we can convert cumene into phenol. From coal tar. Coal tar is a mixture of sodium phenoxide. That is a mixture of sodium phenoxide. When sodium phenoxide reacts with carbon dioxide and water, it gives phenol. So with coal tar. Oxidation of benzene. Okay, if benzene is oxidized in the presence of vanadium pentaoxide and 583 Kelvin temperature. Okay, benzene is oxidized in the presence of vanadium pentaoxide V2O5 and 583 Kelvin temperature, it gives phenol. Okay, next reaction, Roshing process. That is a named reaction, Roshing process. When benzene reacts with HCl and O2, hydrochloric acid and O2 in the presence of copper chloride, it gives chlorobenzene. So first of all, benzene is converted into chlorobenzene, and if ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, अगर क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, देन इट गिव्स फिनॉल. तो इससे हमें जो प्राप्त होगा यौगिक जो हमें वी कैन ऑब्टेन फिनॉल कंपाउंड. दैट इज नोन एज रोशिंग प्रोसेस. What is Dow's process? DOWS, Dow's process. When chlorobenzene reacts with NaOH in the presence of 623 Kelvin temperature and 300 atmosphere pressure, okay, it gives phenol. That process is known as Dow's process. Name reaction again. What are the physical properties of phenol? Phenol is a colorless crystalline solid with pungent smell. बहुत तीखी स्मेल होती है फिनॉल की. ठीक है. फिनॉल आर इजीली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. बहुत इजीली वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है फिनॉल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. What are the chemical properties of phenol? Okay, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. रिएक्शन ऑफ फिनॉल ग्रुप OH ग्रुप के कारण इसकी नेचर होती है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, फिनॉल्स की जो एसिडिक नेचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स. ध्यान रखना, एक तो हमने बनाया ROH, तो मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप फिनॉल की हम एसिडिक नेचर पढ़ते पहले हम. फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर विच कैन बी एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. ओके,
देखिए फिनॉल की अगर हमको एसिडिक नेचर पता लगानी है तो हमें इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए दैट इज़ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, है ना। आपको ये आनी चाहिए बनानी। आप लोगों ने 11th में इसकी प्रैक्टिस कराई थी, मैंने आपको फिनॉल की, एनिलीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ हमको क्या क्या समझना है कि फिनॉल एसिडिक नेचर क्यों शो करता है। एसिडिक नेचर फिनॉल कब शो करेगा, जब उसका ये वाला OH बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब फिनॉल की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसमें से 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है फिनॉल, उसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसमें। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर थे, ये जो लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स फॉर द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर आ जाते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करने के लिए बेंजीन रिंग के अंदर आते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की छोड़ो, इसको जो इसके पास जो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी किसने ले लिए, बेंजीन रिंग में चले गए और ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, ऑक्सीजन के पास में अब केवल एक ही मेथड बचा है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, और वो मेथड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाले बॉन्ड को तोड़ के इससे इलेक्ट्रॉन ले लेना। OH के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और ये जो H है इसको वो रिमूव कर देगा। जैसे ही H रिमूव होगा तो फिनॉल की एसिडिक नेचर पता लग जाएगी या शो हो जाएगी, मतलब कि एसिड नेचर का इंडिकेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करता है, OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गेन करता है और H को रिमूव करता है H+, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसके नीचे मैंने आपको लिखा हुआ है, फ्रॉम दी एबव रेजोनेंस स्ट्रक्चर it is clear that positive charge is present on oxygen atom, that is oxygen atom gain electron from OH bond and H atom is released as a H+ ion, okay। as a result phenol acts as weak acid। फिनॉल वीक एसिड की फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है, ध्यान रखना आपकी बात। अब देखो जब फिनॉल से एक H+ निकल जाता है तो उसके बाद जो ऑप्टेंड होता है उसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो H ने अपने इलेक्ट्रॉन देके वो बाहर निकल गया। अब इससे जो हमें ऑप्टेंड हुआ है वो है फिनॉक्साइड आयन। आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ आयन फिनॉक्साइड आयन इज फॉर्म्ड विच कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये जो फिनॉक्साइड आयन बनता है ये भी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या इफेक्ट पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट का, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि फिनॉल की जो स्ट्रक्चर है ये वाली, देखो सपोज ये वाली फिनॉल की जो स्ट्रक्चर है ये, इस फिनॉल की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर या मेटा स्थिति पर, मेटा पोजीशंस पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो उसकी एसिडिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे NO2 ग्रुप का अटैच है फिनॉल की ऑर्थो पैरा स्थिति पे कहीं पे भी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। NO2 भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन अगर वो NO2 इलेक्ट्रॉन अटैच करेगा तो ऑक्सीजन से और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाएंगे, उसके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, तो उसकी एसिडिक नेचर अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। इसके अपोजिट अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, सपोज क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, तो वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर देगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एल्काइल ग्रुप, मतलब कि CH3 ग्रुप, CH2H5 ग्रुप, ये अगर ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन की भी पोजीशन पर तो एसिडिक नेचर को वो डिक्रीज करेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं, एक तो आपके पास में है COOH ग्रुप, RCOOH, ये होता है RCOOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर फिनॉल है और फिर अल्कोहल है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके बाद में आता है फिनॉल और सबसे कम एसिडिक है अल्कोहल, ठीक है। ये एक मैंने आपको कंपेयर करा दिया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, फिनॉल के अंदर और अल्कोहल के अंदर। ये फिनॉल की एसिडिक नेचर यहाँ होती है पूरी। अगर फिनॉल की रिएक्शन कराई जाए जिंक डस्ट के साथ में, जिंक डस्ट का मतलब होता है जिंक का पाउडर बना दिया, तो आप यहाँ पे जिंक डस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। जिंक डस्ट के साथ में आपको फिनॉल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, देखो फिनॉल जिंक के साथ में करके बेंजीन का फॉर्मेशन करता है C6H6। फिनॉल का जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये जिंक, ये दोनों बनाते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और फिनॉल और ये वाला H जो है वो बेंजीन से जुड़ जाता है तो ये C6H6। फिनॉल रिएक्ट्स विद अमोनिया, फिनॉल रिएक्शन अमोनिया से होती है जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो इससे बनता है एनिलीन C6H5NH2, जो सैंडमेयर रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्टेंट था, एनिलीन प्राप्त होती है इससे, है ना। इथरेशन रिएक्शन मतलब कि ईथर का फॉर्मेशन, फिनॉल की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो इससे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है C6H5O- Na+, ये है सोडियम फिनॉक्साइड। जब सोडियम फिनॉक्साइड की विक्रिया CH3I से कराते हैं, मेथिल आयोडाइड से कराते हैं, तो ईथर हमें ऑपरेंड होता है, जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है।
सी, एक तरफ बेंजीन रिंग, एक तरफ CH3 ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन है, तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, Na बाहर निकल जाएगा, इससे बनता है मिथाइल ईथर। तो ईथर बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है ईथरेशन रिएक्शन। Oxidation reaction. If phenol is oxidized in the presence of sodium dichromate Na2Cr2O7 and concentrated sulfuric acid, phenol is oxidized in the presence of sodium dichromate, it gives benzoquinone. Okay, in the structure of benzoquinone, two ketonic groups are present, C double bond O and C double bond O. That's why its name is quinone. Okay, so after the oxidation of phenol, it gives benzoquinone. नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। इसमें फर्स्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन। ओके, यू नो वेरी वेल, नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, NO2 ग्रुप जो होता है वो बेंजीन पे अटैक करता है, NO2 प्लस ग्रुप जो डाइल्यूट HNO3 से आता है या कंसनट्रेटेड HNO3 से आता है। देखो फिनॉल की जो नाइट्रेशन रिएक्शन है और एक ब्रोमिनेशन आगे आएगी, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ये दोनों अलग अलग होती हैं। कहने का मतलब इनका जो मेथड है वो थोड़ा अलग है। क्या है इनका मेथड अलग? फिनॉल क्रिएशन जब डाइल्यूट HNO3 से होती है तो हमें अलग प्रोडक्ट मिलता है, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड HNO3 देन इट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 इट गिव्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक का नाम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दूसरे का नाम पैरानाइट्रोफिनॉल होता है। बट व्हेन इट रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट गिव्स पिक्रिक एसिड। इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड के नाम से ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका IUPAC नाम इसके नीचे लिखें, यू हैव टू राइट इट्स IUPAC नेम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। NO2 ग्रुप सेकंड पे, फोर्थ पे और सिक्स पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कॉमन नेम से ये ज़्यादा बनता है इसका क्वेश्चन। पिक्रिक एसिड तो वो होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ उसकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन, वो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये इसकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। अगर फिनॉल की रिएक्शन कराई जाए Br2 के साथ में, इससे पहले मैं जो ऊपर वाली रिएक्शन थी वो बाद में बताऊँगा। फिनॉल की रिएक्शन जब Br2 के साथ में कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो इससे ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल प्राप्त होते हैं। दो में मिलते हैं, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। बट व्हेन इट रिएक्ट्स विद 3Br2, जब इसकी रिएक्शन 3Br2 से होगी अगर, तो इसमें CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में नहीं होगी, डायरेक्टली इट रिएक्ट विद 3Br2, तो इससे भी जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो कि ऊपर मिल रहा था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यहाँ बनता है ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, जैसे ऊपर वाले का था पिक्रिक एसिड, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन लेता हूँ मैं, सल्फोनेशन रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हमें मिलता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये जो पेज है थोड़ा सा धुंधला आया है, लेकिन फिर भी पढ़ने में तो आ रहा है। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनेशन से हमको ये मिलता है, और ओनली दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रिश रीअरेंजमेंट। नेम रिएक्शन है फ्रिश रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या होता है देखो, इसमें फिनॉल रिएक्ट्स विद व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, जो कि किस रिएक्शन में आता है, ये आपकी फिडलक्राफ्ट की एसिलेशन के अंदर आता है। फिडलक्राफ्ट की एसिलेशन रिएक्शन के अंदर आता है, फिनॉल की रिएक्शन इससे होती है। तो इससे जो हमें ऑप्टेंट मिलता है प्रोडक्ट वो है ये वाला OCOCH3। इसकी रिएक्शन क्या जाती है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में, तो इससे एक बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये दो हमें इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। फर्स्ट ये वाला है, सेकंड ये वाला है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रिश रीअरेंजमेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है वो। अनदर नेम रिएक्शन इज राइमर-टिमान रिएक्शन। ये एक और नेम रिएक्शन, इसका नाम है राइमर-टिमान रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन जब कराई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ में और KOH के साथ में, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में, तो एक प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, जब फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है, CHO ग्रुप, तो इसका नाम हो जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। दैट रिएक्शन इज नॉन एज राइमर-टिमान रिएक्शन। अब आती है आपके कॉल्बेज रिएक्शन। ओके, कॉल्बेज रिएक्शन में क्या होता है देखो, फिनॉल क्रिएशन होती है NaOH से, तो वही बनता है सोडियम फिनॉक्साइड जो ऊपर क्रिएशन में आ रहा है, लेकिन इसकी रिएक्शन कराई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ओके, हाई प्रेशर पर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन। तो इससे ये जो Na वाला पार्ट है, एक मिनट रुकना, ये जो Na वाला पार्ट है यहाँ पे तो आता है H, ठीक है, और ये जो CW ग्रुप है वो यहाँ बनाता है CWNA ग्रुप। इसका जब क्या रहता है एसिड के साथ में रिएक्शन, तो इससे बनता है सैलिसिलिक एसिड।
ये देखिए, इससे हमें जो मिल रहा है प्रोडक्ट वो है सैलिसिलिक एसिड। जब फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप आता है तो उसको बोलते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। ओके। और जब फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप आता है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप आता है जो कि ऊपर राइमाटिमान में आ रहा था, तो वो होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो राइमाटिमान में बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड और कॉल्बेस के अंदर बनता है सैलिसाइक्लिक एसिड। ध्यान रखना आप इस बात का। इसका क्या होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। फिनॉल की जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की जाती है, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की जाती है, तो बेंजीन की जो तीनों डबल बॉन्ड है ना, उन पर हाइड्रोजन अटैच हो जाती है, तो इससे बनता है साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल इससे हमें मिलता है, बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड यहाँ जो प्रेजेंट होते हैं वो हट जाते हैं और इससे बनता है साइक्लोहेक्सेनॉल। अनदर नेम रिएक्शन इज डफ रिएक्शन। देखो डफ रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन की फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। इस कंपाउंड का नाम है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। और बोरिक एसिड H3BO3 का नाम है बोरिक एसिड। इसके साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो हमें एक एडिक्ट प्रोडक्ट होता है जो थोड़ा सा क्या है अनस्टेबल है, वो हमें मिलता है CH डबल बॉन्ड NCH3 के साथ में। इसका क्या था हाइड्रोलाइसिस, तो हमें फिर से जो राइमाटिमान रिएक्शन में बन रहा था सैलिसिल एल्डिहाइड वो हमें मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो डफ रिएक्शन में भी सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है हमें, ये ध्यान रखना है ना। कॉल्बी रिएक्शन जो थी कॉल्बी वाली, ये वाली, इसमें बनता है सैलिसिलिक एसिड। बाकी राइमाटिमान के अंदर बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड और एक डफ रिएक्शन में बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। अब आती है आपकी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। देखो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन दो होती है, एल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें रिएक्शन होती है CH3Cl से, इसमें होती है CH3COCl से। CH3 वाला पार्ट फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पे लग जाता है, तो इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसोल, इसका नाम है पैराक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल मिलते हैं एल्काइलेशन से। और इसमें Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है, तो इसमें COCH3 वाला पार्ट ऑर्थो पोजीशन पर लगता है और पैरा पोजीशन पर लगता है COCH3 वाला पार्ट। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो दोनों से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक में CH3 ग्रुप अटैच होता है और एक में COCH3 ग्रुप अटैच होता है, ये ध्यान रखना आप। एल्काइलेशन के अंदर एसाइलेशन की ये दोनों आती है फिडलक्राफ्ट रिएक्शन के अंदर। अब अगर कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, है ना, थर्ड रिएक्शन है इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन विद एसीटोन। देखो इसको थोड़ा सा समझना। अगर फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है एसीटोन के साथ में, ये आपके एसीटोन है CH3COCH3, यहाँ हमको फिनॉल के दो मॉलिक्यूल चाहिए, ये वाले हमने फिनॉल के दो मॉलिक्यूल ले लिए। फिनॉल की पैरा पोजीशन पर जो H प्रेजेंट है, फिनॉल के हर कार्बन पर H प्रेजेंट है, लेकिन पैरा पोजीशन पर जो H प्रेजेंट है वो हमने बाहर निकाल रखे हैं दिखाने के लिए। ठीक है, तो कीटोन का तो H वाला ग्रुप, O वाला ग्रुप, और इन दोनों को H ग्रुप ये निकालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर बाहर निकल जाता है और ये जो दोनों बेंजीन होंगे ये कार्बन से अटैच हो जाती हैं। देखो ये अटैच हो गई, ये वाला, इसको बोलते हैं बिसफिनॉल ए। ये जो कैपिटल ए आ रहा है ये आ रहा है एसीटोन से, तो इसका नाम है बिसफिनॉल ए। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद एसीटोन इट गिव्स बिसफिनॉल ए। खाली आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल के और ये दोनों को यहाँ से अटैच करना है बस। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये थैलिक एनहाइड जो होता है ना, यहाँ भी हमको फिनॉल के दो मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर एक इंडिकेटर बनता है विच वन इज़ यूज्ड इन योर लैब। देखो ये फिनॉल के दो मॉलिक्यूल है हमारे पास में, फिनॉल का फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये फिनॉल का सेकंड मॉलिक्यूल, और ये है थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। थैलिक एनहाइड्राइड का जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है ये वाला, और फिनॉल की जो पैरा पोजीशन पर लगे हुए हाइड्रोजन, यहाँ से निकल जाता है वाटर, वही कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है और वाटर बाहर निकल जाता है। और वाटर के बाहर निकलने के बाद में ये जो बेंजीन वाला है ये दोनों कार्बन से जुड़ जाती हैं ऐसे करके। देखो ये जुड़ी हुई है नीचे, इसको कहते हैं अपन फिनोलेफ्थलीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनोलेफ्थलीन। सही प्रोनाउंसिएशन होता है इसका फिनोलेफ्थलीन, बट हम इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में फिनोफ्थलीन बोलते हैं। तो दैट इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। एग्जामिनर बोर्ड के प्रैक्टिकल में जरूर पूछता है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ फिनोफ्थलीन और हाउ कैन यू फॉर्म फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। Next reaction is Ladler-Manasse reaction, another name reaction. When phenol react with formaldehyde, ये है आपके formaldehyde HCHO, formaldehyde से रिएक्शन होती है फिनॉल की, तो ये जो CH2O वाला ग्रुप है ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे लाके अटैच हो जाता है। देखो CH2OH, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, CH2O तो यहाँ से आ गया, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से आया, जब ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पे जुड़ेंगे तो वहाँ से बेंजीन पर जो H लगा हुआ है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा वहाँ से निकल के। तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, दूसरे वाले का नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। दूसरे वाले का नाम आप लिख लेना। फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रीन। देखो एस्प्रीन का जो फॉर्मेशन है ना, एस्प्रीन क्या है, मेडिसिन है एक, जैसे आपने नाम सुना होगा डिस्प्रीन, है ना, वो नहीं है ये, है ना, एस्प्रीन अलग मेडिसिन है। इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, सैलिसाइक्लिक एसिड की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्रेट से कराई जाती है, सैलिसाइक्लिक एसिड जो किस नेम रिएक्शन में बन रहा था वो आप देखना ऊपर,
तो सैलिसाइक्लिक एसिड की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो इससे बनता है एस्प्रिन। COH ग्रुप एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये जो OH वाला ग्रुप था ना, इस OH का H हट जाता है और इसका जो COCH3 ग्रुप है वो यहाँ अटैच हो जाता है। ओके, दैट इज़ अ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये। और एसिटेल इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो तो है एस्प्रिन, और आयु इसका जो वो है क्या बोलते हैं केमिकल नेम, वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये जो ग्रुप है ना COCH3 ग्रुप, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, और ये सैलिसिलिक एसिड से बन रहा है इसलिए इसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। क्लियर। यहाँ आपके फिनोल पूरा हो गया है, अब हम पढ़ेंगे ईथर।